How many question you have covered? 18 sir. 19 में 18 तो हो गया. अब क्या चाहते हो? 90? Yes sir. At least paper should be completed. फिर सी सेट भी है उसमें, तो सी सेट जिसका वीक है वो तो LCM HCF में ही फंसा रहता है. I have done 18 questions, so Yes, 18 question attempted. yes sir. क्या बात, बहुत अच्छा. और और बढ़िया सब. बस memorize it, revise it. This because recall, structuring, all these things, you have to develop an ability that while writing itself you are able to structure. So, how many people completed paper? Completed all 5 questions. 19. पेपर क्या लीक हो गया था? अब मुझे लगता है ऑलरेडी पेपर अवेलेबल होगा. नो. Yes, any other person जिसको शेयर करना है? So the issue in the answer writing is that I feel that matlab I have been improving in the answer writing, but I write too much, due to which my answers matlab writing speed gets slow, and I'm able to cover less questions within the time. How So many how to- question you have covered? 18 sir. 18. Yes sir. 19 में 18 तो हो गया. अब क्या Still- चाहते हो? 90? Still sir. Yes sir. At least paper should be completed. 18 means you will be able to complete ना. जो 10 question complete कर रहा है उसकी क्या हालत है? Not able to complete the paper. Not? Able to complete the paper. अच्छा. Only 14 questions. 14 question. 14 भी तो बहुत है. Sir, but not enough for the exam. Not enough for exam. Sir, I wrote 5 to 6 tests offline in Lukman for public administration, but still I am not able to complete the paper. Then why you are not able to complete? Sir, maybe recalling issue because today I forgot the thinker who chaired MBC second. Sir, this MBC is the second जिसने प्रिसाइड किया था वही भूल गया. क्या issue. जरूरत है? Sir, फर्स्ट भी याद है, सेकंड थर्ड भी याद है, लेकिन जो पूछा है सेकंड वो याद नहीं है. नहीं, और कोई बोलना चाहता है? Happy that I have completed the paper because in foundation test the best time was 1 hour 45 minutes for the 10 question. So after that I tried to practice with the timer clock that 10 marker question I have to write in 7 minutes. Basically I was facing difficulty in 15 and 20 markers because there the content we have to write more, so time was exceeding. But today I planned, and so happy that I executed it. There are people to complete, there are people who are not completing, so it's just a process. No, it is just a process. She will also share something. सर प्रिपरेशन का तो यही है कि या तो ऑप्शनल हो पा रहा है या तो GS हो पा रहा है. अभी तो कोचिंग भी नहीं चल रही, फिर भी यही हो रहा है, क्योंकि फिर सी सेट भी है उसमें, तो सी सेट जिसका वीक है वो तो LCM HCF में ही फंसा रह जा रहा है. कर भी पता ना उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे. I have done 18 जैसे मैंने questions, so Yes, 18 question attempted. yes sir. क्या बात, बहुत अच्छा. और तो बढ़िया सब. बस ठीक है. आई थिंक मेरा मिनिमम है. मेरे से 7 अटैम्प्ट हुए. 7 attempt हुए. सर पता है कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट जैसे क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग फैक्ट्स वो मोल्ड नहीं हो पा रहे हैं. जैसे भैया पीछे बोल रहे थे वैसे कि मुझे पता है क्या क्या हुआ मीनो ब्रुक में, लेकिन अगर उसमें जैसे उसको लिखना है तो उसको कैसे क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग मोल्ड करें. Yes, that's the challenge. Yes, anything? सर जैसे कुछ क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है तो उसमें हम ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, और कुछ क्वेश्चन जिसमें मतलब कम आता है तो उसको हम अच्छे से कर नहीं पाए क्योंकि टाइम जो तो आता अच्छा है तो है, ऐसा ही तो होना चाहिए. लेकिन सर 14 ही अटेम्प्ट कर पाया मैंने. 14 attempt हो गया, बहुत है. Sir, I also attempted 14. This was my first test. So it was not a great experience, I would say, because again there was time constraint. So I had a lot of built up pressure because I have never given an FLT. Because I have made the short notes. I have completed both papers. Yes, you had lots of queries related to making short notes that Yes. time. Yes, sir. I have completed both paper in 130 pages. Both paper and In sir, 130 pages. yes, sir. And sir, I am able to recall. That's why I am happy. And sir, I know if I able to improve my speed, I will able to complete the paper. अच्छा है, काफी Sir, अच्छा. I am feeling so confident by writing this. Confident. Yes, sir. चलो अच्छा है. And sir, among all the Basically, let's say it is just what we can say, out of box thinking. It was someone was talking in class. So while talking in our class, although he has not come in for this test,
Right. Yes. Right. जहाँ से ये ट्रिगर होता है, he is not in class, he has not appeared, as they are saying he is not well. Right. So just an idea came to just take a test, like so that at least we can pull out of you that passivity and inertia. Because we know that those who are not, let's say as of now doing batches, so somehow passivity crops in. No matter how much efforts we apply, but passivity crops in somehow. Or negative things start inhering, we have not kept ourselves occupied. Like the way military keeps itself occupied, you know that how they keep it. So they will clean all those arms and ammunition, means guns, etc., isn't it? And they do some routine work so that they can keep themselves active. But it's military. So it's one institution. You are all alone. So that was the idea, to just pull out of that passivity, inertia, because we know it happens. If it is not happening, like say he is positive, it is good, you can see this. It is also a way to interact, because almost 1 year is left that you have to next year appear in mains examination. So just gear up for that, and something that we want to improve this optional preparation level, let's say that. Let's raise the standard of this preparation level so that you feel confident even if there are challenges. Yes. And you can see by interactions, those who have done their past batches, so they have to make short notes. It's very obvious you have to have short notes. On your interaction, one thing, some few things common which we have realized. One is called that there is lack of recall, means recalling is a problem. Recall will not happen unless you revise. Even if you revise, recall will not happen. You know that 6 times recall, 6 times revision is not helping. Right. The revision, let's say, tarika should be changed, isn't it? So something, let's say, the way we are revising, but recall is one thing, and you have to have that recall. It's, anyone should have written test, those who are prepared, those who are not prepared, especially from past batches. I think, yes, good that you have come, and good. I don't have any negativity, those who have not come. People have different things in different life, means their life. And it is also not, let's say that if and but, or let's say only that if you write tests, so then you are going to secure marks. It's not like that. But it is just a way. So recall will happen only when you revise. The revision is very important. This you should know that. You will always struggle to revise. This, you can see those who are, let's say that doing as of now, and you can see how people have done in past. They do not have classes, but still they struggle to manage time. That is always going to be till the time you write your final paper in UPSC. Time. Right. So you have to manage your time. Learn to manage. Learn to manage is that the next question is, the next common thing find how to manage GS and optional. So you decide, let's say that you should have a plan, let's say. Plan in that you know कि CSAT करना है, GS करना है, ऑप्शनल करना है, यही तो 3 है. दिस, तो जिसका जैसा वीकनेस होता है उसके हिसाब से वो प्लान करता है. राइट. अगर CSAT किसी का वीक है तो देन पर्सन हैज टू प्लान अकॉर्डिंगली. इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्वालिफाई प्रीलिम्स. दिस, अदरवाइज देयर इज नो बिजनेस ऑफ जस्ट डूइंग प्रिपेयरिंग ऑल दिस थिंग्स. So you should plan, basically you should have a plan, let's say that, suppose it's of almost September end, let's say October beginning, 3 months left in this, and then 4 months that side. So obviously means ki naturally you are left with just 3 months. If you do want to do something for mains 2025, so you are left with only 3 months for mains. Otherwise 4 months will go in prelims anyhow. Then how to plan it? Right. So at least average you should plan. Let's give the time to GS and optional. Let's say how you divide it. The 4 hours you can give to optional, rest you can give to GS. Those who are not doing any classes.
तो 4 hours if you do to optional, keep it alive, keep it somehow revised, this and that. That way it will do. And then you do your CSAT, do your GS in rest of the time, because both are important. And execute it even in that way. This execution is important. Many a time we have told you, no? So many things we have told that average plan executed well is better than good plan not executed at all. This, and don't think much. ज़्यादा सोचोगे तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा. इसी में राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है. The writing practice should also happen. So accordingly you should plan in the sense that कि suppose आप 1 महीना में कम से कम 2 टेस्ट लिख दो. अगर नहीं है आपके पास टाइम, 2 टेस्ट लिखो, 3 टेस्ट लिखो, right? If you are preparing for GS that way. But you should keep that plan calibrated, accelerated जिसको बोल सकते हैं. The plan should remain accelerated. It should not somehow come to stand still, isn't it? So balancing is in your hand. This, because each individual has different challenge. कुछ लोग इसी में जॉब करते हैं तो how they will balance it. This that way. कुछ लोगों का अभी मान लो GS चल रहा है तो how they will balance it. That aspect. So this way we can consider the challenge will always remain. Don't think that there will not be challenge. And in this time you have to make your short notes. The short notes will be important, especially those who have completed. If you do not have short notes, आप जून में जाके तो बनाओगे नहीं, तो फिर जून में आपका वही हाल होगा. फिर 3 महीना जो है आप रिग्रेट करते रहोगे, टेंशन में रहोगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट. और ऑलरेडी आपके पास टाइम था, पास जो हो गया वो हो गया. वट एवर यू हैव डन, तो दोज हु हैव डन इट, दोज हु हैव मेड इट, इट इज गुड. दोज हु हैव नॉट मेड इट, दे शुड डू दैट. Next is called that completing paper on time, let's say that. So that aspect is always going to be a challenge. Recall, so you should what we say, memorize it, revise it, this, because recall, structuring, all these things, you have to develop an ability that while writing itself you are able to structure. That ability you have to imbibe, that while writing itself, you just see the question, give a thought over that, understand at least what the question is, demand is, range is. While reading, give at least, let's say, a certain fraction of seconds. Or if 20 mark question, so you will give, let's say, at least 1 minute you can give in thinking, pondering that what should be the structure, etc. But while writing itself, you have to learn to structure. That ability should come. If this ability does not come while writing, I have to structure, it will be difficult to complete paper even if you have good knowledge. This, that is the spontaneity needed. So this will come by practice. If let's say that कि क्यों नहीं आ रहा है, तो जो चीज़ नहीं आ रहा है ना, उसको, उसका तरीका ये है कि जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको आप इतना प्रैक्टिस करो कि वो आ जाए. दिस, मान लो आपको स्ट्रक्चरिंग करने नहीं आता है, तो आप स्ट्रक्चरिंग करने नहीं आता है ना, एक दिन सिर्फ दिन भर क्वेश्चन ही लिख दो यार. फिर दिन भर बैठ के क्या करो, 20 क्वेश्चन लिखो, 30 क्वेश्चन लिखो, 40 क्वेश्चन लिखो, सिर्फ लिखते रहो. दिस, जो चीज नहीं आता है दैट शुड बी डन टू सच ए लेवल दैट इट बिकम्स योर स्ट्रेंथ. दिस, अगर याद नहीं होता है तो इतना याद करो कि वो फिर याद ही रहे. दैट शुड बिकम योर स्ट्रेंथ. तो अलग अलग तरीके से करना पड़ता है. आपको क्या लगता है, कैसे ही याद हो गया है? ठीक है, तो ऐसे ही याद हो गया क्या? उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ता है. राइट, अभी भी बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ता है. मान लो नया चीज़ आ गया, उसको पढ़ना है, उसको जानना है, समझना है, याद रखना है. राइट, अब मान लो कल ही नया आया है और आज क्लास में पढ़ाना है, तो कैसे याद होगा? यस, यू शुड नो दैट इट इज़ पॉसिबल. देखो, हर आदमी के पास, हमने तो आपको इतने महीने तक पढ़ाया है ना, तो एक दिन मैं 5 मिनट बोल के क्या करूँगा? बट
हर आदमी, आप अगर नेगेटिव सोचना शुरू करते हो तो द एंड ऑफ जर्नी यू शुड नो दैट। हमारे माइंड में भी नेगेटिव बहुत तरीके से आता है, बट लेट्स से दैट कि यू नीड टू कंट्रोल इट, यू नीड टू बिलीव इन यू एंड ट्रेन योर माइंड। जो चीज़ नहीं आता है पहले उसी को करो, भागो मत। जैसे मान लो सीसेट नहीं आता है ना, तो सीसेट इतना पढ़ो कि वो आ जाए, बस ये होता है। इसलिए कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना तो आपको पता है ना कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट। प्रीलिम्स नहीं होगा तो ये सारा एफर्ट्स बेकार है। इनफैक्ट इट विल टेक आउट ऑफ योर ऑल लेट्स से कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग। दिस यू फील सो ह्यूमिलिएटेड, वी नो दिस, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। सबके पास उतना ही टाइम है, तो जो फिलॉसफी होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि टेंशन कम करो, सोचो कम एंड स्टडी ज़्यादा करो। दिस तो दैट विल हेल्प यू। एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तो सो इतना ज़्यादा आइडियलाइज करने से, फिलोसफाइज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिक है। बेसिक क्या है कि आपके पास जो 10 आवर्स एवरेज अगर आप पढ़ते हैं, जिसका कोई क्लास नहीं है उसको 10 to 12 आवर्स पढ़ना चाहिए। दिस एवरेज उसको 10 to 12 आवर्स पढ़ना चाहिए, जिसके पास कोई क्लास नहीं है। आप वो यूट्यूब दे करके 6 आवर्स अगर पढ़ रहे हो आप, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी के टाइम क्या कर रहे हो? 24 आवर्स है ना, तो 24 आवर्स में आप नहीं 6 आवर्स पढ़ते थे, हो गया। 6 आवर्स से तो कुछ होने वाला नहीं है। this at least you should study 10 hours, those who are not doing any class, right? And yes, those who are doing job they don't have time, तो 6 आवर्स पढ़ते हैं। लेकिन जो बाकी, अब मान लो कोई जॉब करने वाला क्वालिफाई कर गया और बोला कि मैं 6 आवर्स पढ़ता था, और आपके पास कोई जॉब नहीं है और अभी 6 आवर्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो देखो हर आदमी का अलग अलग फिलॉसफी है। मैं तो 24 आवर काम करने वाला अभी भी आदमी हूँ, सॉरी टू से दैट, राइट। मैं उन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता, हालांकि मान लो कई बार सुनना पड़ता है, isn't it? right. मैं वो सेटल लाइफ में बिलीव करता हूँ। नो, ये संडे सैटरडे ऑफ कुछ नहीं, 24 आवर एक ही चीज़ चल रहा होता है, right? तो इसलिए कि हर आदमी, जैसे यहाँ तो लोग हैं 9 to 9, नारायण मूर्ति वर्क 30 years 9 to 9 ईयर, कैसे काम किया उन्होंने? और आप बोलते हो 6 घंटा पढ़ो, 30 years 9 to 9, वो भी आदमी जिसके पास इतना अचीवमेंट है तो भी वो वर्क कर रहा है। तो ये सब चीज़ें ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है कि 6 आवर्स है स्टडीड। आप भी ऐसे ही बोलोगे जब क्वालिफाई कर जाओगे, बट जितना टाइम है ना, let's try to utilize this time, and especially let's say that कि those who are not doing classes, for them I'll say that। इसलिए कि देखो आपका बैच मुझे पता है ना कि एटलीस्ट पिछले साल से फिनिश हो गया है ना, आपके पास टाइम है ना, तो अगर अगली बार 25 में अगर खाली जाता है ना, हाउ विल टॉलरेट इट? इट कैन नॉट बी टॉलरेबल। अब 25 का जो आपका ये है टेंशन है, वो इतना नहीं होना चाहिए कि पढ़ना लिखना बंद कर दो। देखो फ्रिक्शन होना चाहिए ना, टेंशन नहीं होना चाहिए, दैट आई ऑलवेज से। तो यू नीड टू लेट्स से एक्सेलरेट योर प्रिपरेशन एंड डू समथिंग ईच डे, समथिंग सब्सटेंशियल। हर दिन कोशिश करो कि आज हमने कितना पढ़ा है हमने। बस टेंशन ज़्यादा मत लो किसी भी चीज़ का, जैसे चाहे लिखने आता है नहीं आता है, राइट, हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस कर लो अगर कर सकते हैं तो। दिस लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, रिवीजन करना ज़रूरी है, नोट्स का होना ज़रूरी है, और एक लेवल पे जाके सब्जेक्ट फिनिश होना ज़रूरी है। यस, अगर सब्जेक्ट फिनिश नहीं होता है तो चैलेंज ये होगा कि दिस इज़ व्हाट आई से दैट कि आपका तो चैलेंज और भी ज़्यादा है ना, जब तक जून आएगा तब तक तो याद नहीं रहेगा, उस समय तो याद होगा नहीं। So that is what we did it, this test, which hope कि it will give you positive energy to restart, or if you have started, accelerate it, prepare it, know that कि मुझे कहाँ stand करना है, मतलब where do I stand, let's say, we'll see your copies when we'll check it,
we'll see you because we know you. So we'll see that ki what weaknesses you have, how you can further improve. Because I also wanted to know, especially from past batches students ki now abhi unka condition kya hai. That was also a curiosity. Suppose it has become a 1 year, if you're writing a test, so where do you stand? आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है. This. So that is also one, let's say that aspect. So the way we try to, let's say, motivate you, you should feel also that way positive, and challenges are always there. Right. आप अगर समझते हो कि किसी के लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, जो भी किसी को भी देखते हो, देखने में अच्छा लगता है, तो ये गलती है आपकी. बहुत ही सिंपलिस्टिक थिंकिंग है. जो जितना ही हाई अचीव किया होता है वो उतना ही ज़्यादा चैलेंजेस से गया होता है. ये रियलिटी है. ये और बात है कि वो शेयर नहीं करता है, वो बताता नहीं है. आपको लगेगा कि वो बहुत ही सिंपल है. तो चैलेंज आपके पास भी है, आपके भी लाइफ में बहुत सारा चैलेंज है. चैलेंज तो यही है कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करोगे अगले 2025 तक, और कैसे रेगुलरली स्टडी करोगे. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज apart from all other challenges. So take it positive, feel light, not a problem. इतना ज़्यादा सेंटेड और क्या होते हैं, मतलब होने की ज़रूरत नहीं है. राइट. सब कुछ ठीक है. लिखना है, बहुत बड़ी बात है. राइट. आना, लिखना, मेंटली प्रिपेयर करना, itself let's say that की good thing. And you want to share something. सर मेरा एक पर्सनल डाउट है कि रिमेम्बरिंग और स्ट्रक्चरिंग इशू नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. क्योंकि हम अगर क्लास में डिस्कस करते हैं बहुत ही लेवल लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं, बट क्वेश्चन जो फाइनल में आएगा या फिर टेस्ट सीरीज में आता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. तो उसको टैकल करने के लिए नहीं करना. देखो, क्वेश्चन जो क्लास में होते हैं वो जनरल, मतलब जो क्लास का डिस्कशन है वो जनरल है, ठीक है. बट वो इतना भी जनरल नहीं है. कई बार वो बहुत ही स्पेसिफिक भी होता है. Certainly question is framed on a different way. On the basis of that understanding, you have to understand the question and write the question. Question will always be challenging. Challenging in the sense कि कुछ नया होगा ना. This is how we say always in the class कि suppose we have taught you at this level. अब question में थोड़ा सा आपको ये इतना ज़्यादा innovate करना होगा, इतना ही करना है. बस बेस यही होगा. बट क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? थोड़ा सा इंक्रीमेंटल इनोवेशन. जैसे पहला ही क्वेश्चन है, मुझे पता है लोगों ने क्या लिखा होगा. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज गवर्नेंस इन एक्शन. लोगों ने क्या लिखा है? गवर्नेंस का डेफिनेशन लिखा है. ठीक है. वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट लिखा होगा. यही लिखा होगा ना, गवर्नेंस के बारे में लिखा होगा. नहीं लिखा है. क्या बात है. तो अगर आपने ये लिखा है कि वो गवर्नेंस इन एक्शन, मतलब गवर्नेंस के बारे में लिखा है, तो गलत है. पब्लिक, वो क्वेश्चन ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्शन ओरिएंटेड. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्शन ओरिएंटेड. हमें क्या लिखना है कि यस, विल्सन सेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्शन साइड ऑफ द गवर्नमेंट, मोस्ट विजिबल साइड ऑफ द गवर्नमेंट, दिस एंड दैट, प्लस 2-4 डेफिनेशन लिखना है. फिर बाद में लिखना है कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस ओरिएंटेड हो जाता है. मिनोब्रुक थर्ड का एक डेफिनेशन लिखना है. एंड में ये लिखना है कि इट इज नॉट ओनली एक्शन ओरिएंटेड, इट इज ऑल्सो ए डिसिप्लिन, इट इज ऑल्सो ए सब्जेक्ट. निग्रो एंड निग्रो, राइट? ऐसा लिखना है. बट यस, पीपल विल राइट. मुझे पता है. तो चैलेंज होता है. दैट इज हाउ इट इज ना कि योर क्या वो बोलते हैं कि नॉलेज, विजडम, समवन आर सेइंग दैट कि विजडम दैट यू हैव टू अप्लाई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन वो इतना अगर आसान आ जाए, भाई यूपीएससी का एग्जाम है, क्या बात कर रहे हो आप? सीबीएसई वाला तो है नहीं.
तो कुछ तो वहाँ ट्रिकी होगा ना, आपका भी लेवल तो है ना, आप भी एक ऐसे लेवल से बिलोंग करते हैं। जो कैंडिडेट्स अपीयर करने वाले हैं उनका भी अपना एक लेवल है, यूपीएससी का अपना एक लेवल है। तो क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है कि अगर नया क्वेश्चन वो नहीं देंगे तो आप तो उसके ऊपर चढ़ जाओगे, सॉरी टू से चढ़ बैठोगे, सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, बट मतलब आप यूपीएससी को शो कर दो कि देखो हम क्या है। बट यूपीएससी हमेशा वो आपके बोलती है ना हमेशा कि अपने लिमिट में रहो। Anyhow, that's not the point. Point is कि they have to ask that question ना, तो that is how it is challenging. अब now आपको क्या करना है, आपने कैसे लिखा, आपको पूरा नॉलेज अप्लाई करना पड़ा, आपको पूरा नॉलेज एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन का अप्लाई करना पड़ रहा है ना, दिस, तो दैट इज हाउ इनोवेशन। तो ये इतना वाला पार्ट अगर जिसको आता है, इसके ऊपर वी एक्सपेक्ट, हम अगर ये पढ़ा देते हैं तो फिर इसके ऊपर भी इनोवेट करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट तो हमेशा इट इज योर्स, ये हम नहीं कर सकते, इट इज योर्स and that is you. That is how we can consider like this, right? This will happen by revision, it will happen by wisdom. It is cumulative knowledge, pulling all knowledge, let's say that, thinking, convergence, GS knowledge, optional knowledge, it's all convergence. That brings you that wisdom. This, if you are able to understand it. This, like say कि I will give you example, CAG का question क्या है, CAG के बारे में सबको पता है, तो CAG GS का question क्या है, it does not question only legality but also propriety. This, अब आपको propriety innovate करना पड़ेगा ना, आपको पता है लेकिन आप क्या लिखोगे वहां पर। CAG के बारे में सबको पता है, जो लोग मेंस लिख रहे हैं उससे ज्यादा उसको पता नहीं चलेगा और एक्सपेक्टेड भी नहीं है, राइट। अब जो उसको नहीं लिंक कर पाता है लीगैलिटी और प्रोप्राइटी से, राइट, तो देन द पर्सन लैक्स एबिलिटी। अब वो ये नहीं कह सकता है कि वो कैग रिवाइज नहीं किया था, अभी कोई रिवाइज करने वाला सब्जेक्ट है। तो दैट इज व्हाट इनोवेशन, राइट, and that is yours. It should come by your efforts. That's why writing practice is needed, reading is needed. When you make short notes, the short notes gives a process, right? कोई भी short notes बना रहा है तो वो एक process के through जा रहा है, उस process को travel कर रहा है वो, तो at the end he is a different person. This, that is how it is important and that is how you should do that. By the way, we have kept another thing that called, we have planned that in December basically, we will conduct another open test that is for paper second. Because we hope that by December you will be able to complete your paper second, revise, etc. So we will have one more open test for chapter union government and state government. This, right? सो दैट कि एक पेपर टेस्ट सेकेंड का भी होना चाहिए। पेपर 1 इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, पेपर 2 इज डिफरेंट सब्जेक्ट, तो यू कैन कीप इन मेमोरी फ्रॉम हियर नाउ ऑनवर्ड्स दिस, दैट वे वी कैन से। देयर इज आल्सो वन ओपन टेस्ट वी हैव केप्ट फॉर एसे, यू कैन अपीयर यूपीएससी, लेट्स से यूपीएससी पेपर आई थिंक इन सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, एसे लेट्स से कि वी हैव केप्ट some papers we keep open, so you can appear in that also if you want to write essay, you want to see yourself, this and that, so that way. Ideal number of revisions, ideal number is that it's like once batch is finished, that is first condition. So when batch is finished, thereafter at least one revision, then you should make it. This, because by the time you will do 5-6 revision, you know what will happen. When batch is finished, then you should make short note. Why? Because by that time you are not that level of, let's say, knowledge enough that you can understand what to leave, what to make. This,
एंड आई विल अगेन टेल द बेस्ट थिंग इज दैट कि देखो जो चीज आपका वीक है उसको इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो आपको वहां से कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब तक जो आपका वीक है उसको स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। बस जैसे हम लोगों को भी कुछ याद नहीं रहता। आई विल शेयर वन स्मॉल स्टोरी। व्हेन वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग हमें भी कुछ नहीं याद रहता था, बहुत ही ह्यूमिलिएशन फील होता था। तो हाउ इट हैपेंड, तो बहुत याद किया, बहुत याद किया, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो इतना याद किया, इतना याद किया कि जिससे ह्यूमिलिएशन होता था उससे भी बेहतर होने लगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना कि बहुत याद रहता है। दिस हाउ यू डू दैट? तो याद करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आज के डेट में अगर याद नहीं रहेगा तो ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आपको हम बताते हैं, जिसे मेंस अभी हुआ है, आज ही हो रहा है ना, मुझे पता है कल तक बच्चों से हमारा जो इंटरेक्शन है मेंस वालों से, तो जो लोग मॉक टेस्ट लिखते हैं, मॉक टेस्ट जब पूरा टेस्ट हो गया तो टेस्ट में अच्छा कर रहा था, उम्मीद था कि मॉक टेस्ट में अच्छा करेगा, बट मॉक टेस्ट आते आते सब भूल गया। जब सेक्शनल टेस्ट हो रहा है ना तब पढ़ के आ रहे हो ना, तो चैप्टर 1 टेस्ट हुआ, पढ़ के आ गए, सब लिख दिया, लगा अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही चल करते करते सारा टेस्ट हो गया, अब आते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आया, टाइम नहीं है रिवाइज करने का। जब टाइम नहीं है रिवाइज करने का, अब क्या करेगा? अब तो मेंस आ गया पास में। तो वो बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन होता है, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होता है। इसीलिए आपको ये सोचो कि पहले से अगर याद रहेगा तो उस समय आपको ये चैलेंज नहीं होगा, इसलिए कि उस समय टाइम नहीं मिलता है। दिस ये एक प्रोसेस है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इम्प्रूव कर जाते हैं, जिसका सेक्शनल अच्छा नहीं था, मॉक टेस्ट आते आते इम्प्रूव हो गया। इसलिए किसी का जर्नी स्लो स्टार्ट हो सकता है, वो आगे जाके अच्छा कर सकता है, किसी का जर्नी अच्छा ही स्टार्ट हो सकता है और बाद में जाके स्लो हो जाता है। अब आज पेपर हुआ है, पता चलेगा लोगों ने क्या किया है। तो दैट इज हाउ इट इज। सो बिलीव इन योरसेल्फ, डू इट, एंड this type of practice we have brought, it gives you opportunity to test yourself. Let's time to time break your inertia. That is how we can say this. So we'll finish. Okay, all the best.